as a resource person, where he has significantly contributed to investor education and protection. Dr. Agarwal has organized around 1,350 investor awareness programs to make people aware about the investments, and which is helpful to various stakeholders of the society, demonstrating the commitment and financial literacy. He has been adjudged as the best resource person and got an award for that from the regional director SEBI and National Stock Exchange. And he is having exceptional contribution to the financial education National Financial Quiz 2014. He mobilized maximum participation in the National Financial Quiz and earning appreciation from the director of National Institute of Securities Market, that is NISM, as a mentor. Dr. Agarwal mentors fintech, social startups, providing guidance and support to the emerging entrepreneurs, which is a need of the hour. He is also a mentor of change associated with Niti Yog, which is one of the premier policy think tank of India. Dr. Agarwal has got Uttarakhand Ratna Award from the Chief Minister of Uttarakhand in recognition of his significant contribution to the state, and also the Teacher of the Year award consecutively for the 2 years, that is 22 and 23, for his excellence in education and mentorship. His efforts in converting the 5 blocks of Uttarakhand into financial literate regions have been recognized by the Honorable Member of Rajya Sabha and Chairman of Jila Panchayat. Dr. Agarwal's multifaceted expertise, dedication to financial education, and numerous contributions that underscore his pivotal role in promoting financial literacy and wellness across various segments of society. So his contribution continues to have a lasting impact on the local level, that is the regional level, and the national level. And he's continuously having such kind of workshops. So we have organized in our GND also, I think it's a third or fourth, this workshop, and soon we'll find that rather than online we can have him offline too. Thank you so much, sir, for Thank you, ma'am. Thank you, being with ma'am. us. Thank you, ma'am. Thanks for nice introduction. And definitely we do a physical workshop with your Yeah. institution. Yes. And it's your support so that we are able to do more and more workshops with you. And you are very eager to deliver more and valuable sessions to your students. Yes, sir. So shall we start, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Is my PPT is visible to you? Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you. So, as ma'am said, today we are assembled for investor awareness program or a financial literacy. So, our first question arises that as an investor, how much we are important for the country, or do we feel proud as an investor? क्योंकि सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक इन्वेस्टर के रूप में हम महत्वपूर्ण भी हैं या नहीं है, या केवल जो पैसा हम लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं वो अपना रिटर्न जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। कल्पना कीजिए कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लाइक बैंक, इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है। अगर वहां पर कोई व्यक्ति अपना इन्वेस्टमेंट ना करे तो क्या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करेगी? यू कैन सबमिट योर रिस्पॉन्स टू द चैट बॉक्स। यस, anyone from the participant, agar if there is no one to invest their money in these financial institutions, are they exist? Good. रेखा ने बताया नो। गुड, बहुत बढ़िया। तो यस, ये सब किसके पैसे के ऊपर सरवाइव करते हैं? ये सब आपके पैसे, इन्वेस्टर मनी के ऊपर सरवाइव करते हैं। और आपके पैसे का होता क्या है कि हम में से कोई व्यक्ति लोन लेगा, अपना रोजगार चलाएगा, 4 लोगों को रोजगार देगा, तो आपका जो पैसा है वो रोजगार सृजन के कार्यक्रम में लगता है, लिवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम होते हैं। और कंट्री के जितने भी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे आपके पैसे से पूरे होते हैं, क्योंकि जो पैसा आप टैक्स के रूप में देते हैं
उस पैसे से क्या होता है, वो पैसा गवर्नमेंट की इनकम होती है, और गवर्नमेंट जो है उसे अपने खर्चों में प्लान करती है। अभी आपने 1 फरवरी को बजट सुना होगा, तो बजट में जो सरकार के पास आय का साधन है वो क्या है, योर टैक्स मनी। जो आप टैक्स देते हैं वो सरकार की आय का साधन है, और उसी को सरकार अपने आगे खर्चों में प्लान करती है। जो आपको सैलरी मिलती है, जो आपको इंसेंटिव मिलते हैं, जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो सारा आपके टैक्स मनी से पूरा होता है। लेकिन जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, जो बजट का पार्ट नहीं हो पाते हैं, वो सारे इन्वेस्टर के पैसे से पूरे होते हैं। तो आपका पैसा जो है देश के विकास में, उसकी जीडीपी डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अगर मैं बात कहूं कि आप सभी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हैं, कि कोई भी इकोनॉमी बिना इन्वेस्टर के सरवाइव नहीं कर सकती। वुड यू एग्री विद मी? मेरे इस स्टेटमेंट से आप सहमत होंगे कि कोई भी इकोनॉमी हो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हो, बिना इन्वेस्टर के वो सरवाइव नहीं हो सकती। यस और नो? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस। तो बिना इन्वेस्टर के कोई भी इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई यू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। तो आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आप देश अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे आपका छोटा इन्वेस्टमेंट है या बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आप अपने इन्वेस्टमेंट से देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको गर्व होना चाहिए। तो एज एन इन्वेस्टर, मैं आपके लिए क्लैप करता हूं, और आप खुद के लिए भी वर्चुअली क्लैप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रिएक्शन सेक्शन है, यू विजिट टू द रिएक्शन सेंटर एंड क्लैप फॉर यू ओनली। अपने लिए क्लैप कीजिए। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, और जो फंडामेंटल है हमारे इन्वेस्टमेंट के, वो हम लोग कैसे जानें, क्या हमारे एक्शन प्लान हो, उसी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो आई एम वेरी मच इंथुसियास्टिक अबाउट नेक्स्ट 1 आवर, कि हमें, मैं कुछ आपके लिए डिलीवर कर पाऊंगा और आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले या सेव करने से पहले हमें क्या आवश्यकता होती है? हमें एक रेगुलर इनकम की आवश्यकता होती है। इफ यू डोंट हैव रेगुलर इनकम, तो हम क्या बचाएंगे और क्या इन्वेस्ट करेंगे? तो हमारी एक सर्टेन मंथली इनकम होती है, वीकली इनकम होती है, एनुअल इनकम होती है। अब उस इनकम से हम लोग क्या करते हैं? हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू बीट आउट आवर एक्सपेंसेस, क्योंकि ये खर्चे ही हमें मोटिवेट करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। और उसके बाद जो बचता है उसे हम लोग सेविंग बोलते हैं, और उसके बाद वो सेविंग को हम लोग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तीन जो है हमारे, स्पेंडिंग, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसको टाइम करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है। वो टूल क्या, किस नाम से जानते हैं हम लोग उसको? दैट इज बजट। बजट में हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में हम लोग बैलेंस करते हैं, और बजट के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी मंथली इनकम कितनी होने वाली है, कितनी है, और हमारे मंथली एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, और उस एक्सपेंडिचर्स जो है हमारी इनकम से ज़्यादा है या कम है। अगर हमारे एक्सपेंडिचर इनकम से कम है तो हमें क्या दिखाई देगा? सेविंग होगी या नहीं होगी? अगर इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, देन वी आर सेविंग और नॉट? You can submit your response into the chat box. Yes, good. तो हमारी सेविंग के लिए क्या होना चाहिए? इनकम हमारी एक्सपेंडिचर से ज्यादा होनी चाहिए, और इनकम अगर हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा कम होगी तो क्या होगा? हमारा डेफिसिट बजट हो जाएगा, फिर हमें लोन लेना पड़ेगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो एक बैलेंस जानने के लिए और अपनी इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए हमें बजट बनाना जरूरी हो जाता है। और फिर हम अपने खर्चों को
सेग्रीगेट कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं डूज एंड नीड्स एंड डिजायर्स में। अगर हमारे खर्चे इनकम से ज़्यादा हैं या इनकम के एट पार बैठ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर अपने नीड्स और डिजायर्स में अपने खर्चों को सेग्रीगेट करते हैं। और वहां से जो हमारी सबसे प्रायोरिटी क्या हो जाती है हमारी, टू मीट आउट आवर नीड्स, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी डिजायर्स को देखते हैं, जिसको हम लोग पुराने समय में आप देखते होंगे, जो मूवीज में आपको दिखाई देता है कि हमने पेट काट करके आपको पढ़ाया। तो पेट काटना मीन्स क्या हुआ कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए अपनी डिजायर्स को कंप्रोमाइज किया है और कई बार अपनी नीड्स को भी कंप्रोमाइज किया है। और फिर हम सेविंग को अपनी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या अंतर होता है? अगर आप अपने मित्र को अपने पर्स में से 100 रुपए निकाल करके देते हैं, तो आप 10 बार सोचते हैं कि दूं या नहीं दूं। तो क्या, किस बात का डर आपको लगता है? कोई बताएगा? जब आप अपनी पॉकेट में से कुछ पैसे निकाल करके अपने मित्र को देते हैं, तो आप हेजिटेट करते हैं। वेरी गुड, रेखा रानी कह रही वापस देगा या नहीं। वेरी गुड, मीन्स ये क्या हुआ, ये एक रिस्क हुआ। मीन्स जब सेविंग क्या है, वो पैसा, वेरी गुड श्वेता, तो आपने भी यही कहा है कि वेदर ही और शी विल गिव अस बैक और नॉट। वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सेविंग क्या है, जो पैसा हमारी पॉकेट के अंदर है। और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम अपनी पॉकेट से अपना पैसा निकाल करके दूसरे को हैंड ओवर करते हैं। और जब हम दूसरे को हैंड ओवर करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही रिस्क शुरू हो जाता है, वेदर वी गेट बैक आवर मनी और नॉट। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ये है। तो ये क्या रिस्क है, क्या इस रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं या नहीं है, क्या हमारी पोजीशन है, तो वो ही जानना एक कला है, दैट्स एन आर्ट। और जिसने इस रिस्क को समझ लिया, इस रिस्क को टेम कर लिया और इसको मिटिगेट कर लिया, वो एक अच्छा इन्वेस्टर माना जाए। तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम अपने पैसे को दूसरे किसी व्यक्ति को हैंड ओवर करते हैं, वेदर इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई सा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। तो वहां पर क्या होता है, एक रिस्क होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सबसे पहले आपको अपना रिस्क चेक करना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में आ जाती। तो एक वर्ल्ड रिनाउंड इन्वेस्टर हुए हैं वॉरेन बफेट, आप सभी उनके नाम से परिचित होंगे। तो वो क्या कहते हैं, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो उनका मानना क्या है, क्योंकि हम जो पैसा बचाते हैं वो अपने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बचाते हैं। तो अगर हम लोग केवल जो हमारे खर्चों से पैसा बच रहा है उसके ऊपर अगर हम लोग डिपेंड करेंगे, तो कभी भी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसे अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे गोल निश्चित हैं और हमें पता है कि हर महीने कितना पैसा हमें बचाना है, तो सबसे पहले अपनी सेविंग आप कीजिए। जो आपकी गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जितना पैसा आपको बचाना है, उतना पैसा आप सबसे पहले अपनी इनकम में से निकाल लीजिए। और बाद में जो पैसा बचता है उसे ही आप अपनी इनकम मान करके उसमें अगर आप अपने खर्चे पूरे करते हैं, तो वो एक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर के जाता है। और एक समय आएगा जब वो आपकी इनकम, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है महंगाई, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन से हम लोग बहुत चर्चा हमारे बीच में रहती है, और महिलाएं खास करके महंगाई के बारे में तो आपको पता ही है, क्योंकि हमारा जो स्टाफ रूम टॉक है वो सबसे ज्यादा महंगाई के ऊपर ही निर्भर होती है। तो इन्फ्लेशन से एक इन्वेस्टर कैसे जुड़ा हुआ है? तो इन्वेस्टर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि अगर इन्फ्लेशन 7% के हिसाब से बढ़ रही है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है, वो 3% के हिसाब से मिल रहा है,
तो आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं? वेरी गुड रेखा, लॉस। बहुत बढ़िया आपने आंसर किया है। गुड। तो लॉस, तो ये लॉस हम कैसे समझेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा, लॉस। तो इसको समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 रुपए है, या कोई कमोडिटी आज मुझे 100 रुपए की मिल रही है, तो 7% इन्फ्लेशन के साथ 1 साल के बाद मुझे वो 107 रुपए की मिलेगी। और मैंने अपने 100 रुपए आज इन्वेस्ट किए हैं, तो 3% ब्याज के साथ मुझे 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 103 रुपये हो जाएगी। तो अगर मुझे वो कमोडिटी खरीदनी है, तो मुझे 1 साल के बाद 4 रुपए अपनी पॉकेट से मिलाने पड़ेंगे। सो दैट्स माई लॉस। और पैसा क्या है? पैसा एक तरह की परचेज पावर है, और ये पावर जो है वो समय के साथ डिक्रीज करती है। कोई सी भी पावर हो, पावर का प्रिंसिपल क्या होता है? डिके विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे जो पैसे की परचेज पावर है, डिके विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और जो हमारा रिटर्न है, उसका चेक करने का बेंचमार्क क्या है? इन्फ्लेशन। क्योंकि अभी हम लोगों के बीच में क्या जनरल परसेप्शन रहता है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए जमा किए हैं और मुझे 6% के हिसाब से 6,000 रुपये ब्याज मिल गया, तो मैं बड़ा खुश रहता हूँ कि मुझे 6,000 रुपये ब्याज मिल गया। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 7% है, तो मैं 1,000 रुपये के तो पहले ही लॉस में आ गया। फिर 6,000 रुपये के ऊपर मुझे इनकम टैक्स भी देना पड़ रहा है। अगर मैं 30% के ब्रैकेट में हूँ, तो मुझे लगभग 1,800 1900 रुपये जो है इनकम टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो वो I request to admin kindly mute all. वो जो है, तो मुझे क्या हो रहा है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मुझे कोई रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रहा, वो ऊपर से मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी बनी हुई है। आई एम पेइंग नियर अबाउट 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा। तो मुझे जो 1 लाख रुपए की मेरी वैल्यू कितना रहेगी? 97,000 ही रह जाती है, जबकि दिखने में वो 1,06,000 रुपये दिखाई देते। तो इस तरह जो इन्फ्लेशन है वो आपकी सेविंग को भी ईट करता है, क्योंकि अगर आप उसे अपने घर के अंदर रखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इसमें आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं, इम्पेक्टेड होते हैं, और आपकी सेविंग भी इम्पेक्टेड होती है। तो यहाँ पर आपका लगता है रूल ऑफ 70। 70 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग 70 को रेट ऑफ इन्फ्लेशन से डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू निकल करके आती है, उतने समय में आपकी सेविंग आधी रह जाती है, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो डबल हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, 70 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया, तो कितना आएगा? 10। तो अगर आज मेरे घर का खर्च 30,000 रुपये से चल रहा है, तो 10 साल के बाद इसी घर को चलाने के लिए मुझे 60,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। और इसको आप लोग अभी भी चेक कर सकते हैं। अगर आज आप 10 साल 15 साल पहले जाएं, तो जो आटा आपको 10 रुपए किलो मिलता था, उसी के लिए आज आप 40 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो आटा तो वही है, उसकी क्वांटिटी भी 1 किलो का वजन भी उतना ही है, क्वालिटी भी वही है, लेकिन चीजों के दाम समय के साथ बढ़ते हैं। दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का आपका पार्ट है। इसी तरह से अगर आपने घर के अंदर 1 लाख रुपए रखे, 10 साल के बाद उसकी पावर कितनी रह जाएगी? उसकी वैल्यू रह जाएगी 50,000 रुपीज। कहने का मतलब क्या हुआ कि आज जो सामान मैं 50,000 रुपये दे करके खरीद सकता हूँ, 10 साल के बाद उसी सामान को खरीदने के लिए मुझे 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन योर सेविंग एंड ऑन योर एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर मुझे अपना कोई फाइनेंशियल प्लान बनाना है, तो मुझे उसमें इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। कि भाई आज अगर मैं कोई सोच रहा हूँ कि मुझे 10 साल के बाद घर लेना है, और आज उस घर की कीमत 10 लाख रुपए है, तो 10 साल के बाद इन्फ्लेशन के साथ उस घर की कीमत कितनी होगी, तो उस हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी सेविंग करनी है। और जो पैसा आप घर के अंदर रख रहे हैं, उसके ऊपर आप कितना लॉस
बियर कर रहे हैं, वो आपको इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन सेविंग से पता चल रहा है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि जितना जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो वहां से आप ये जो इन्फ्लेशन से अपने सेविंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ बात आ जाती है कि भाई अब सेविंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंशियल प्लान चाहिए। सो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? मुझे लग रहा है आप में से काफी लोगों का अपना एक फाइनेंशियल प्लान रेडी होगा। तो फाइनेंशियल प्लान क्या होता है? तो फाइनेंशियल प्लान समझने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न, आपको एक मूवी का सीन याद दिलाता हूँ। एक मूवी आपने देखी होगी जिसमें एक्टर जो है वो भगवान के सामने 3 गुल्लक रखता है। पहले गुल्लक पे उसने लिखा है माँ के इलाज के लिए, दूसरी गुल्लक पे लिखा है बहन की शादी के लिए, और तीसरी गुल्लक पे लिखा है भाई की पढ़ाई के लिए। आप में से किसी ने ये मूवी देखी है? आपको कोई ये सीन याद आ रहा है जिसमें एक्टर जो है भगवान के सामने 3 गुल्लक रखी हुई हैं? वेरी गुड, एक रिस्पॉन्स मुझे मिला है, नो। किसी ने, रेखा कह रही है नो। यस, हरमनदीप कह रही है यस। कैन यू नेम, बता सकते हो कौन सी मूवी है ये? इसमें एक्टर जो है 3 गुल्लक रखी है उसने, माँ का इलाज लिखा है, बहन की शादी लिखी है और भाई की पढ़ाई लिखी है। वेरी गुड श्वेता रंजन, बहुत बढ़िया बताया। मुझसे शादी करोगी, बहुत बढ़िया, गुड। हरमनदीप ने भी बताया, गुड, बहुत बढ़िया। तो ये एक मूवी है, और ये सीन मैं एक फाइनेंशियल गोल सेट करने के लिए यूज करता हूँ। तो ये 3 क्या है, ये 3 उसके फाइनेंशियल गोल्स हैं। ये 3 उसकी लायबिलिटी हैं या 3 उसकी जिम्मेदारियां हैं। उसको अपने लाइफ में क्या कराना है, माँ का इलाज कराना है, बहन की शादी करानी है और भाई की पढ़ाई करवानी है। भाई जनरली हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर लेते हैं, तो ये हमारे कॉमन गोल हो जाते हैं। लेकिन हमें कॉमन गोल, फाइनेंशियल गोल ना होकर के हमारी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं वही हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने परिवार के साथ बैठना है, उनकी जिम्मेदारियों को उनकी जो इच्छाएं हैं उनको समझना है, और आने वाले समय में आप क्या अचीव करना चाहते हैं उसे लिख लेना है। सो जो चीजें आपके सामने आएंगी वही आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, और इसीलिए बोलते हैं फाइनेंशियल गोल जो है वो व्यक्तिगत होते हैं, वो जनरलाइज नहीं होते। तो जब हम लोग इन फाइनेंशियल गोल की बात करते हैं, तो ये फाइनेंशियल गोल तय करने के लिए हमको अपने जो नजदीकी लोग हैं या अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अब जब ये चीजें हमारे सामने आ जाती है तो उन गोल को हमें लिख लेना चाहिए। अब बात आती है कि जैसे मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ कि भाई ये 3 गुल्लक है, माँ का इलाज, बहन की शादी और भाई की पढ़ाई। ये 3 उस व्यक्ति की जिम्मेदारियां हैं, ये 3 उसको पता चल गई कि भाई मुझे ये 3 गोल अचीव करने हैं। तो उसने इनको एक 3 अलग अलग गुल्लक पे लिख करके लगा दिया। अब एक प्रश्न उठता है कि भाई ये 3 गुल्लक की क्यों आवश्यकता पड़ी, एक गुल्लक से भी काम हो सकता था। एनीवन कैन आंसर, व्हाई वी नीड 3 पिगी बैंक? भाई 2 गुल्लक के पैसे बच जाते। यस, थिंक ओवर इट। भाई उसने 3 गुल्लक ही क्यों रखी, एक गुल्लक भी रख सकता था। यस, श्वेता कह रही है 3 गोल 3 गुल्लक अकॉर्डिंग टू द नीड। वेरी गुड। देखिए, जब आप अपने गोल निश्चित कर लेते हैं तो गोल को टाइम के साथ एसोसिएट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसको आप टाइम के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं तो गोल गोल नहीं रहते हैं, डिजायर्स रह जाते हैं, सपने होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करूं, उसको माँ का इलाज कराना है, तो सोचिए माँ का इलाज कितने समय में कराना हो।
भाई डिजीज पता चल गई है, केवल 6 महीने 1 साल का टाइम मिला है कि पैसा इकट्ठा करके लिया और इलाज हो जाएगा। तो ऐसे लक्ष्य जो हमें 6 महीने 1 साल में अचीव करने होते हैं, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब बहन की शादी करानी है, तो वही 1 से 3 साल का टाइम है। तो ऐसे लक्ष्य जो हमें 1 से 3 साल में अचीव करने पड़ते हैं, ये हमारे मिड टर्म गोल की कैटेगरी में आ जाते हैं। भाई छोटा है, पढ़ाई कराने में भी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भेजने में भी उसको 3 से 5 साल का टाइम है। तो ऐसे लक्ष्य जो हमें 3 से अधिक सालों में अचीव करने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म गोल की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ये कैटेगराइजेशन हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि तीनों कैटेगरी के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं, उनके सेफ्टी प्रिंसिपल अलग अलग हो जाते हैं, उनके रिटर्न के प्रिंसिपल अलग अलग हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि आपको शॉर्ट टर्म गोल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा क्या? अगर मिलेगा तो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात करें, तो वहां पर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, विच इज मैक्सिमम, क्योंकि वहां आपका लंबा समय लगा। और शॉर्ट टर्म गोल में छोटा समय है, तो वहां पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो बहुत नेग्लिजिबल होगा आपके इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में, या नहीं के बराबर होगा। अब एक और चीज आती है भाई, एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। आपने कई बार सुना होगा भाई, कोई भी आपके पास एडवाइजर आता होगा तो बात करता होगा एसेट एलोकेशन करनी है, या आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है, तो वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एसेट एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो मेरे शॉर्ट टर्म की ग्रोथ कम होगी, तो मुझे वहां पे अपने प्रिंसिपल अमाउंट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा टू मीट आउट माई शॉर्ट टर्म गोल्स। तो अगर मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे 50 से 60 रुपये अपने शॉर्ट टर्म गोल को एलोकेट करने पड़ेंगे। अपने 30 से 40 रुपये मुझे मिड टर्म गोल को एलोकेट करने पड़ेंगे, और लॉन्ग टर्म गोल को मुझे 10 से 20 रुपये एलोकेट करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑफ बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि वो लंबे समय के लिए जाएगा, तो उसमें क्या होगा, एक समय के बाद जो मेरा रिटर्न है वो भी प्रिंसिपल में कन्वर्ट होगा, और वो डबल होने लगेगा। तो दैट इज एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। ओके, सो दैट्स व्हाई ही पुट 3 पिगी बैंक में। तीनों में अगर उसे 100 रुपये डालने हैं शाम को, तो उसे 60 रुपये माँ के इलाज वाले में डालने हैं, 30 रुपये उसे बहन की शादी वाले गुल्लक में डालने हैं, और 10 रुपये उसको भाई की पढ़ाई वाले गुल्लक में डालने हैं। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये गुल्लक उसने भगवान के सामने क्यों रखी? एक क्वेश्चन है ना, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि भाई ये गुल्लके जो हैं उसने भगवान के सामने क्यों रखी? अलमारी के अंदर रखनी चाहिए थी, वहां सेफ रहती। एनीवन कैन आंसर? गुड। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, आपको एंजॉय करेंगे एज अ विटनेस। गुड, तो भगवान उसके विटनेस है, श्वेता। यस। उसे डर हो, हरमनदीप ने बहुत ये बढ़िया कहा, उसे डर हो और विड्रॉ ना कर सके। गॉड विल कीप सेफ सो दैट ही कैन बी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो आपके रिस्पॉन्स है बहुत नियर टू द आंसर हैं, और ये हमारी अपनी मेंटल स्टेटस भी शो करते हैं, जो आप आंसर करते हो, जो वर्ड आप लोग यूज करते हो। तो वाकई आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रिंसिपल लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप 41 डेज तक किसी अपने लक्ष्य को डेली विजुलाइज करते हैं, तो वो चीजें आपके जीवन में घटित होने लगती है। तो उसने भगवान के सामने रखी 3 गुल्लक, तो उसे जब वो घर से बाहर निकलेगा, तो वो भगवान के सामने जब जाएगा, तो उसे ये 3 अपने लक्ष्य भी दिखाई देंगे, और ये 3 लक्ष्य उसे मोटिवेट करेंगे टू अर्न मनी। और जब घर वापस आएगा, तब उसे वो अगले दिन के लिए वो प्लान तैयार करेगा। तो जब वो इन गुल्लकों के अंदर पैसा डालेगा, तो उनका भरने के लिए वो एक अपना प्लान रेडी करेगा।
तो इसी तरह से आपके चाहे फाइनेंशियल गोल हो, आपके अपने लाइफ गोल हो, कैरियर गोल हो, उनको अचीव करने का तरीका क्या है, उन्हें आप लिखिए और लिख करके ऐसी जगह रखिए कि जहां आप उसको डेली विजुलाइज कर पाए। तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि द डे विल कम कि वो चीजें आपके जीवन में घटित होने लगेंगी और आप उसको अचीव करने लगेंगे। ओके, तो आर यू एंजॉइंग? अच्छा लग रहा है आपको? गुड, थैंक यू। क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि जो हम लोग वर्चुअल क्लास लेते हैं उसमें लोग बोर होने लगते हैं, तो वो भी एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि भाई आप लोग बोर ना हो। सो दैट्स हाउ फाइनेंशियल प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। और ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये इसमें इन्वेस्टिंग इज द राइट एसेट कैन हेल्प क्रिएट वेल्थ इन द लॉन्गर टर्म। तो जितना जल्दी आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो उतना जल्दी आप लोग अपने लक्ष्य को अचीव करने की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि भाई इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग कैन प्रूव टू बी बेनिफिशियल। और एक प्रिंसिपल ये भी होता है कि 10 साल से अधिक का कोई भी हम निवेश करते हैं तो वहां पे रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जर्नल हमारे एक लक्ष्य हैं कि हम लोग जीवन में घर बनाना चाहते हैं, बच्चों की शादी है, परिवार है, गाड़ी है, वेकेशन के लिए जाना है। और यहाँ पर एक कुर्सी आपको दिखाई दे रही है, रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग अभी हमारे बीच में उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फाइनेंशियल चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ यू। क्यों? क्योंकि जब हम लोग रिटायर होते हैं तो हमारी इनकम जो है लगभग आधी या आधी से भी कम हो जाती है, लेकिन हमारी खर्चे जैसे के तैसे रहते हैं। क्योंकि एक हमारा स्टेटस हो जाता है, तो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हमें अपने खर्चों को मेंटेन करना पड़ता है। तो अपनी रिटायरमेंट को आप जरूर प्लान करें। और रिटायरमेंट क्यों प्लान करें कि इस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में क्या है, दैट इज नियर अबाउट 78 ईयर्स। अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं तो अगले 18 से 25 साल आपको और जीना है। और ये 18 से 25 साल आप किस पैसे पे जिएंगे? जो पैसा आप अपनी वर्किंग लाइफ के दौरान इकट्ठा करेंगे। तो अगर आप 25 साल से अपना कैरियर शुरू करते हैं और 60 साल तक काम करते हैं तो आपका वर्किंग लाइफ स्पैन 35 ईयर्स का होता है। तो इन 35 ईयर्स में आप अपने रिटायरमेंट को जरूर प्लान कीजिए। और रिटायरमेंट प्लान कैसे होगा कि आपको उस समय कितने पैसे की आवश्यकता होगी और उसके लिए हर महीना आपको कितना पैसा बचाना है, तो वो एक जरूर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। सो व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस वेयर यू कैन इन्वेस्ट? तो उसमें गोल्ड में कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, बैंक डिपॉजिट्स वगैरह, इन सब में आप लोग अपना निवेश कर सकते हैं। और एक म्यूचुअल फंड एक तरीका होता है निवेश करने का। आप इन किसी भी एसेट क्लास में म्यूचुअल फंड की हेल्प से निवेश कर सकते हैं। जनरली हमारा परसेप्शन क्या है, म्यूचुअल फंड की हेल्प से हम लोग केवल स्टॉक्स या शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, विच इज नॉट ट्रू। हम लोग किसी भी एसेट क्लास में म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। तो जो हमारा एसेट एलोकेशन होना चाहिए, इट्स लाइक अ बैलेंस थाली। तो बैलेंस थाली का मतलब क्या हुआ कि जैसे उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसी तरह से हम लोग हर एसेट क्लास के अंदर अपना निवेश करें, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि कब कौन सी एसेट क्लास चलेगी। अभी ऐसे हम लोग बात करें तो गोल्ड का एग्जांपल लें, लास्ट 1 ईयर में गोल्ड ने मोर देन 20% रिटर्न जनरेट करके दिया है। जबकि उससे पहले जो हमारा रिटर्न गोल्ड के अंदर था वो बड़ा स्लो था। उससे पहले इक्विटी मार्केट चल रही थी। तो कब कौन सी मार्केट चलेगी, तो उसको हासिल करने के लिए हमें हर एसेट क्लास के अंदर अपना निवेश करना चाहिए। और जिससे हम जब जो मार्केट चले और हमको एक हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न है उसकी एवरेजिंग भी प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो यहाँ पर
हम अगर अपने इन्वेस्टमेंट को देखें, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसे प्रोडक्ट एसेट क्लास में निवेश करना चाहिए जो समय के साथ जिनकी वैल्यू बढ़ने वाली है। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी हमें क्या कोई रेगुलर रिटर्न देती है? नहीं। लेकिन क्यों हम लोग निवेश करते हैं? क्योंकि समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ती है। इसी तरह से गोल्ड है, इक्विटी शेयर्स हैं, या आर्ट कलेक्शन है। अब आर्ट कलेक्शन में हमारे यहाँ बहुत कम ट्रेंड है इन्वेस्ट करने का, बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली। लेकिन आर्ट कलेक्शन, या जैसे अगर एक फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, तो उसकी जितनी बार भी ऑक्शन होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो इस तरह से ऐसे इन्वेस्टमेंट जो समय के साथ जिनकी वैल्यू बढ़ती है तो उनको हम लोग बोलते हैं ग्रे इन वैल्यू, ग्रो इन वैल्यू इन्वेस्टमेंट। और ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हम एक रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं, सो दैट रेगुलर इनकम इज थ्रू इंटरेस्ट ओनली, तो उनको हम लोग बोलते हैं फिक्स इनकम प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, बैंक, कंपनी डिपॉजिट्स या पीपीएफ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हमको एक इंटरेस्ट इनकम मिलती है। अब इसमें निवेश करने का एक तरीका म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड के अंदर जो है इन्वेस्टर अपने पैसे को पूल करते हैं, और पूल करके किसको हैंड ओवर करते हैं? वो फंड मैनेजर को हैंड ओवर करते हैं। फंड मैनेजर कौन होता है? एक प्रोफेशनल होता है, उसके साथ पूरी एक R&D टीम होती है जो आपके निवेश को स्टॉक्स, सिक्योरिटीज में निवेश करती है और वहां से रिटर्न जनरेट करके आपको वापस करती है। सो दैट इज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क। अब म्यूचुअल फंड का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसी है जैसे अगर हम लोग कभी ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करके हम लोग बस ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी क्या होती है? भाई हम केवल अपना टिकट का पैसा देते हैं और जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। बस चलाने का काम किसका होता है? ड्राइवर का होता है। तो यहाँ पर ड्राइवर कौन है? आपका फंड मैनेजर आपका ड्राइवर है। आपके इन्वेस्टमेंट को वो आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आगे लेकर के जाता है। तो जो आपने डेस्टिनेशन निश्चित किया था उस डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंचाना ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है, और यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव थे उनको अचीव कराना फंड मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर भी हमको विजिलेंट रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे आसपास बस में जब हम ट्रैवल करते हैं खिड़कियां खुली होती है ना। तो खिड़कियों से मतलब क्या हुआ कि अगर आपको अपने डेस्टिनेशन पर जाना है तो बीच में जो भी डेस्टिनेशन आ रहे हैं वो आपको बताते हैं कि भाई आप टाइमली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अगर बस की स्पीड ठीक चल रही है देन इट्स ओके। अगर आप नहीं चल रही है तो क्या होता है, आपको अपना रिव्यू करना पड़ता है और तब उसके अल्टरनेट के ऊपर आपको विचार करना पड़ता है। इसी तरह से अगर जिस ऑब्जेक्टिव के साथ अपना अपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो आपको टाइमली अचीव नहीं हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं वो अचीव नहीं हो पाएंगे, तो आपको अल्टरनेट के ऊपर विचार करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिव्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, जो कि हम लोग जनरली नहीं करते। सो व्हाई इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड? तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमें मिलता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, लो कॉस्ट है, स्मॉल अमाउंट्स मीन्स हम लोग मिनिमम 200 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, इट्स वेल रेगुलेटेड बाय सेबी, और लिक्विडिटी इज वेरी हाई। अब म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर और स्कीम की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो स्पॉन्सर है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग एक ट्रस्ट फॉर्म करते हैं। ट्रस्ट की फॉर्म किया जाता है, अगर आप पब्लिक मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करा रहे हैं तो आपको या तो सोसाइटल मोड में जाना पड़ता है या फिर ट्रस्ट मोड में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट है वो फर्दर एसेट मैनेजमेंट कंपनी और कस्टोडियन को अपॉइंट करता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंसी, फंड अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करती हैं, और वो अपने रोल के अकॉर्डिंग अपना अपना काम करते हैं। और एक कस्टोडियन होता है, कस्टोडियन का रोल क्या रहता है? टू ओवरसी द मैनेजमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो उसके रोल को वो ओवरसी करते हैं और उसको ट्रस्ट को रिपोर्ट करते हैं। अब इन्वेस्टर जो है किसी भी स्कीम के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करके उस पर्टिकुलर एएमसी और ट्रस्ट का बेनिफिशियरी हो जाता है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूचुअल फंड। अब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड होते हैं। ओपन एंडेड फंड कौन से होते हैं? जिसमें आप कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड ऐसे फंड जिसमें आप केवल एंट्री लेवल पर ही एंटर कर सकते हैं, और जब स्कीम का लॉक इन या उसके ड्यूरेशन पूरी होती है तभी आप उसको रिडीम कर पाएंगे। इंटरवल फंड ये सम सॉर्ट ऑफ क्लोज एंडेड फंड होते हैं
लेकिन ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद इसमें ट्रांजेक्शन के लिए इनको ओपन किया जाता है। फिर क्लोज एंडेड फंड में फॉर एग्जाम्पल 3 साल का लॉक इन है, तो 3 साल तक आप अपने फंड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि बीच में आपके पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको इंटरनल फंड्स में जाना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पर एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड। एक्टिव फंड क्या होते हैं? ये ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं जो फंड मैनेजर द्वारा डिजाइन किए जाते हैं टू जनरेट मोर एंड मोर रिटर्न देन द बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? हमारे पास इंडेक्स या सेंसेक्स जो है वो हमारे बेंचमार्क होते हैं। और पैसिव फंड हमें एक रेडीमेड पोर्टफोलियो मिलता है, इंडेक्स फंड जिसे हम बोलते हैं, तो उसी को हम लोग फॉलो करते हुए उसी को रेप्लिक उस पोर्टफोलियो को यूज करते हैं, हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग बात करें तो ग्रोथ फंड्स होते हैं, इनकम फंड्स होते हैं और हाइब्रिड फंड्स होते हैं। तो ग्रोथ फंड जो है हमारा फंड की जो वैल्यू है वो समय के साथ बढ़ती रहती है। इनकम फंड एक रेगुलर इनकम, इंटरेस्ट इनकम हमारे बीच में लेकर के आते हैं, और हाइब्रिड फंड इन दोनों के ब्लेंडेड प्रोडक्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड और लिक्विड फंड होते हैं। अदर फंड के बात करें तो ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, एएलएसएस, रिटायरमेंट पेंशन स्कीम्स, ओवरसीज फंड एंड फंड ऑफ फंड्स। उसको हम लोग आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सेबी ने क्या किया है कि 2017 में पहले डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्कीम्स चलती थी जिससे इन्वेस्टर जो था कंफ्यूज रहता था। नाउ अब उन्होंने क्या करा, उसको 5 सेगमेंट में कैटेगराइज कर दिया है, जिसमें प्योरली इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम और अदर स्कीम्स। तो इक्विटी फंड की बात करें तो इक्विटी फंड में मीन्स क्या होता है? आपका पैसा जो है वो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगता है, स्टॉक मार्केट में लगता है, और इसमें लंबे समय में हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमें यहाँ पर वोलाटाइल मार्केट होती है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस भी हो सकता है। जैसे ये शॉर्ट टर्म का प्रोडक्ट नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड्स आर बेटर, और इसमें हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न के पॉसिबिलिटीज भी रहती है। तो इसकी अगर हम लोग सब कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे मल्टी कैप फंड्स होते हैं, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसमें आपके इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज के हिसाब से ये जो है डिसाइड होते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड, अब इसमें आपका पैसा ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में लगता है जो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होते हैं। वैल्यू फंड, इसमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मीन्स ऐसे कंपनीज का स्टॉक जिनके समय के साथ वैल्यू बढ़ने की संभावना होती है, उन कंपनीज के फंड स्टॉक्स में आपका पैसा लगता है। कॉन्ट्रा फंड, फोकस फंड, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड। तो ये एक जो है सब कैटेगरी ऑफ इक्विटी फंड्स हो जाते हैं। अगर आप अपना होमवर्क करते हैं और आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर या थीम जो है आने वाले समय में काम करने करेगी, तो उस थीम के स्टॉक्स को फोकस करते हुए या उस सेक्टर को चूज करते हुए आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एलएसएस फंड, जो लोग टैक्स सेविंग के पर्पज से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए एलएसएस फंड जो है वो एक आंसर है। तो एलएसएस फंड के अंदर जो आप निवेश करते हैं उसमें 3 साल का लॉक इन रहता है, और इसमें अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स से, अंडर सेक्शन 80C आप लोग 1.5 लाख तक की जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स फ्री होती है। और इसमें जो आपका निवेश है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से नोटिफाइड जो कंपनीज रहती हैं उसमें आपका निवेश होता है। अब डेट फंड्स की बात करें तो डेट फंड क्या होता है? फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और इसमें हमारे को जो है एक सर्टेन इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, एंड इट्स सुटेबल फॉर द इन्वेस्टर सीकिंग रिटर्न विद लो और मॉडरेट रिस्क। तो यहाँ पर टाइप ऑफ डेट फंड आप देख रहे हैं, तो इसमें आप ओवरनाइट फंड, आप एक रात के लिए भी पैसा लगा सकते हैं और 10 सालों के लिए भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप डेट फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो वहां पर आपका रिस्क बढ़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रिस्क।
तो डिफरेंट ड्यूरेशन के हिसाब से आपके पास फंड अवेलेबल है। जैसे अगर मैं बात करूं ओवरनाइट फंड, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर 1 डे, तो उसकी मेच्योरिटी 1 डे की होती है। लिक्विड फंड 91 डेज, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 3 to 6 मंथ, लो ड्यूरेशन फंड 6 to 12 मंथ्स, मनी मार्केट फंड जिनकी मेच्योरिटी 1 ईयर की होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 to 3 ईयर, मीडियम ड्यूरेशन फंड 3 to 4 ईयर, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 4 to 7 ईयर, then long duration fund greater than 7 years, dynamic bond funds, corporate bond fund, credit risk fund, banking and PSU fund, gilt fund with 10 year constant duration, floater fund। तो ये सब डेट फंड की कैटेगरीज है। तो जिसमें जो भी आपको सूट करता है, जैसी आपकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए फंड ढूंढ सकते हैं और उसमें अपना निवेश कर सकते हैं। अब हाइब्रिड स्कीम क्या होती हैं? अब आप ना ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि इक्विटी में निवेश करें या डेट में निवेश करें। तो आपको लगता है कि भाई इक्विटी भी चलेगा या फिक्स इनकम प्रोडक्ट, आपको फिक्स इनकम भी चाहिए, तो उसके लिए हाइब्रिड स्कीम डिजाइन करेंगे। इट्स अ ब्लेंडेड प्रोडक्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो इसमें आपका जो रिस्क होता है मॉडरेट रिस्क होता है। अब इसमें भी जो आपका प्रपोर्शन इक्विटी की तरफ एलोकेट होगा या डेट की तरफ एलोकेट होगा, उस एलोकेशन के हिसाब से हाइब्रिड फंड की कैटेगरीज होती है। तो इसमें कौन सी होती है? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अगर एलोकेशन इक्विटी की तरफ, क्योंकि हाई रिस्क फंड है, तो कंजर्वेटिव मीन्स आपको आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट की उसकी सेफ्टी की तरफ ध्यान देते हुए 10 से 25% पैसा आपका इक्विटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में लगता है, बाकी 70 से 90% पैसा आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है। बैलेंस हाइब्रिड फंड, तो इसमें 40 to 60% पैसा आपका इक्विटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में लगता है, 40 to 60% पैसा, और उसका अपोजिट जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इसमें जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है 65 to 80% पैसा आपका इक्विटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में लगता है और बाकी 20 से 35% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है। इससे जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज की हम लोग बात करें, तो उसमें आप फंड मैनेजर को फ्रीडम देते हैं, जैसी सिचुएशन डील करती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन, आर्बिट्राज फंड, इक्विटी सेविंग फंड्स, तो इस तरह के जो फंड्स हैं ये अपनी नॉमिनलिकेचर के हिसाब से आपको एक हाइब्रिड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर स्कीम की हम लोग बात करें, तो अगर आप रिटायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग करना करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल का लॉक इन रहता है और आप जो है अपने रिटायरमेंट को इस पर्टिकुलर स्कीम के साथ प्लान कर सकते हैं। चिल्ड्रन फंड, अगर आप बच्चों के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए जनरली हमारी लाइबिलिटी कितने साल के लिए रहती है? 20 सालों को, 20 से 25 साल के लिए रहती है। तो चिल्ड्रन फंड का जो हमारा ड्यूरेशन होगा दैट इज 15+ ईयर का हो जाता है। इसी तरह से रिटायरमेंट फंड 30 से ज्यादा सालों का रहता है। इंडेक्स फंड और ईटीएफ, इसमें आपका 95% पैसा जो है सिक्योरिटी और पर्टिकुलर इंडेक्स में लगता है। इसको हम लोग पैसिव फंड की कैटेगरी में भी रखते हैं और इसमें आपका जो फी है दैट इज कैप्ड एट 1.5%। फंड ऑफ फंड्स, इसमें आप ओवरसीज और डोमेस्टिक मार्केट के स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं। और बीटीएफ क्या होते हैं? अगर हम लोग किसी इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड या बास्केट ऑफ एसेट को अगर हम लोग एक बुके उसका बना लेते हैं, एक बास्केट बना लेते हैं, तो उसके अंदर हम लोग एक्सचेंज के माध्यम से निवेश करते हैं। जब हम लोग एक्सचेंज के माध्यम से निवेश करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट रियल टाइम होता है। तो एक पैसिव फंड मैनेजमेंट है और इसमें आपको लोअर कॉस्ट ऑफ फंड मैनेजमेंट देखने को मिलती है। इस तरह से अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो गोल्ड में जनरली हमारे दिमाग में आता है हम ज्वेलरी खरीदते हैं। तो ज्वेलरी में कई सारे चैलेंजेस रहते हैं। प्योरिटी का चैलेंज होता है, आपको वहाँ पे मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, प्रॉफिट ज्वेलर का उसमें इंक्लूड हो जाता है, टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। तो आपके इन्वेस्टमेंट का एक हैंडसम अमाउंट इन सब चीजों में निकल जाता है। अगर आप 100 रुपये निवेश करते हैं तो 30 से 40 रुपये आपके इन चीजों में निकल जाते हैं। तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 50 से 60 रुपये का रहता है। जबकि गोल्ड ईटीएफ में आप डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हैं, जहां पर आपको 99.5 प्योरिटी के गोल्ड में आपका निवेश होता है। और यहाँ पर जो है आप 1 ग्राम गोल्ड
की एक यूनिट के बराबर अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। और इसमें जो प्राइस मूवमेंट है, दैट इज अ प्राइस ऑफ द गोल्ड। जो मार्केट के अंदर गोल्ड का प्राइस है उसके हिसाब से गोल्ड ETF का प्राइस भी मूव करता है। अब इंटरनेशनल फंड के माध्यम से आप ओवरसीज मार्केट के अंदर अपना निवेश करते हैं, तो उसके EDR GDR में आप लोग निवेश कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल फंड भी एक आपका एक सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट अच्छा करेगी, तो आप उसमें भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। देन फंड ऑफ फंड्स की बात करते हैं, तो फंड ऑफ फंड्स एज अ मल्टी मैनेजर फंड के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग 3 या 4 स्कीम्स को क्लब करके एक फंड ऑफ फंड बना देते हैं, तो हर स्कीम को एक फंड मैनेजर रन करता है। तो जब 4 फंड मैनेजर को हम लोग पैसा अपना एलोकेट करते हैं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होता है, मिनिमाइज हो जाता है। आर्बिट्राज फंड, अब 2 एक्सचेंज या डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर जो पर्टिकुलर स्टॉक्स का प्राइस गैप होता है, उससे के थ्रू हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इस टाइप के फंड को हम लोग आर्बिट्राज फंड बोलते हैं। अब म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सी हमारे लिए सुटेबल है, तो उसको हम लोग कैसे पता करें? तो इक्विटी के अंदर क्या है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाइब्रिड स्कीम में मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न। डेट स्कीम में लो मॉडरेट रिस्क लो मॉडरेट रिटर्न। और लिक्विड फंड्स के अंदर वेरी लो रिस्क वेरी लो रिटर्न। तो अगर आप छोटे समय के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अपना निवेश करना चाह रहे हैं, तो लिक्विड फंड इज द आंसर। और मिड टर्म या वेरी शॉर्ट मिड टर्म के लिए करना चाह रहे हैं, तो डेट फंड्स। और मिड टर्म के लिए आपका हाइब्रिड फंड, और लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी स्कीम्स इज द आंसर। जब आप निवेश करते हैं, तो आपको कुछ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट पढ़ने चाहिए या पढ़ने होते हैं उस स्कीम। तो ये कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिसे हम लोग सिट बोलते हैं। तो उसमें उस स्कीम से रिलेटेड जो भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं, फी है, एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, ये सब आपको स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद सेकेंड डॉक्यूमेंट होता है साई, इसकी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो आपकी लीगल टैक्स ऑब्लिगेशंस हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। और एक होता है की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, तो ये समराइज वर्जन होता है सीट का, क्योंकि ये सीट थोड़ा सा लंबा होता है। तो उसमें जो उसके की पॉइंट्स हैं वो की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में आपको देखने को मिलते हैं। और जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसके लिए एक फैक्ट शीट रिलीज होती है हर महीना। तो वो फैक्ट शीट पढ़ के उस स्कीम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। इट्स अ स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर स्कीम। तो इसे पढ़ करके आप अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड व्हाट आर द प्लान एंड ऑप्शंस की हम लोग बात करें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जिसको आपको समझना चाहिए, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। अब डायरेक्ट प्लान जैसा नाम, किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के अगर आप अपना निवेश करते हैं, तो उसे डायरेक्ट प्लान की कैटेगरी में जाना। तो डायरेक्ट प्लान का क्या बेनिफिट होता है कि इसमें वो एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर की जो ब्रोकरेज है वो आपके इन्वेस्टमेंट में जीरो हो जाती है, वो आपके इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट नहीं होती है। तो क्या होगा, आपका एसेट एलोकेशन ज्यादा होती है, जिससे आपको हायर एनएवी और लंबे समय में ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि आपके एक्सपेंस रेशियो लो हो जाते हैं। जबकि रेगुलर प्लान में आप किसी फंड मैनेजर या एजेंट के माध्यम से निवेश करते हैं, तो उसकी जो ब्रोकरेज है वो आपके इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका एसेट एलोकेशन कम हो जाता है, जिससे आपको लंबे समय में डायरेक्ट प्लान की अपेक्षा कम रिटर्न देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करें ग्रोथ ऑप्शन या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन, पहले से हम लोग डिविडेंड ऑप्शन के नाम से भी जानते थे। तो ग्रोथ ऑप्शन में हमको डिविडेंड ना मिल करके जो डिविडेंड है वो हमारा उसी स्कीम में इन्वेस्ट हो जाता है, और लंबे समय में फिर ये हमारा जो है एक अच्छा खासा कॉर्पस हमें नजर आता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जो कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो डिविडेंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और उस डिविडेंड के सापेक्ष
उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो भी कम हो जाती है। तो अगर आपको डिविडेंड फॉर्म में रिटर्न चाहिए तो जैसी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने लिए प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। अब मोड ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान या इंटरेस्ट स्कीम स्विचेस के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। अभी ये क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आजकल हमारे बीच में काफी प्रचलित है और आप सभी सुनते भी होंगे कि इस महीने जो सिप के माध्यम से लगभग 25,000 करोड़ रुपया निवेश किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बीच में बहुत अधिक प्रचलित है। तो सिप क्या होता है, एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह से होता है कि हम लोग एक अपना अमाउंट तय करते हैं, फ्रिक्वेंसी तय करते हैं कि हमें डेली इन्वेस्ट करना है, वीकली करना है, फोर्टनाइटली करना है या मंथली करना है, क्वार्टरली करना है, हाफ ईयरली करना है, एनुअली करना है। तो जो फ्रिक्वेंसी आपको सूट करती है वो फ्रिक्वेंसी आप फिक्स करते हैं, अमाउंट फिक्स करते हैं और उस पर्टिकुलर डेट पर जो आपने निश्चित किया और जो अमाउंट निश्चित किया उस डेट पर आपका अकाउंट से पैसा डेबिट होकर के आपके म्यूचुअल फंड के अंदर एलोकेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट में एक डिसिप्लिन आ जाता है और स्मॉल और इंस्टॉलमेंट में आप लोग निवेश कर सकते हैं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। जैसा अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर सिप के माध्यम से एक आपको बेनिफिट और मिलता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब जैसे अगर आप 25 साल की उम्र से शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र तक 1,000 रुपये महीना जमा करते हैं और आपका जो रिटर्न है वो 8% के हिसाब से है। तो 25 साल की उम्र से शुरू किया तो 60 साल तक आप कितना निवेश करेंगे, 35 साल आप निवेश करेंगे और इन 35 सालों में 1,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपका जो है 4,20,000 रुपये निवेश होगा और आपका जो कॉर्पस 8% के हिसाब से बनेगा और लगभग 23 लाख रुपए का बनेगा। वहीं अगर आप 30 साल की उम्र से निवेश करते हैं तो आपका जो कॉर्पस है 15 लाख रुपए का बनेगा। तो लगभग 5 साल लेट करने से आपको कितना हो गया, लगभग 8 लाख रुपए का लॉस हो गया। अगर आप 35 साल की उम्र से शुरू करते हैं तो 15 आपका कॉर्पस 9 लाख का बनेगा तो लगभग 6 लाख रुपए का लॉस हो गया। अगर आप 40 साल की उम्र से शुरू करते हैं तो आपका कॉर्पस लगभग 6 लाख रुपए का बनेगा जो और आपको 3 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितना जल्दी आप शुरू करते हैं उतना जल्दी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है और आपका एक कॉर्पस अच्छा बन जाता है। और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की हम लोग बात करें तो ये बात निश्चित है कि मार्केट फ्लक्चुएटिंग है, वोलाटाइल है। तो वोलाटाइल मार्केट में कभी मार्केट बढ़ रहा होता है, कभी घट रहा होता है या कभी वोलाटाइल रहता है। तो क्या होगा, डेली प्राइस आपके चेंज हो रहे हैं और आपने अपना हर महीने का कंट्रीब्यूशन किया तो कभी आपको एनएवी कम मिलेगी, कभी ज़्यादा मिलेगी। तो अगर हम लोग एवरेज परचेज प्राइस देखें एनएवी का और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट देखें तो वो हमेशा आपके एवरेज परचेज प्राइस से कम होती है। So that is the meaning of rupee cost averaging. सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, अगर आप कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको रेगुलर इनकम चाहिए फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट तो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक दैट मंथली इनकम स्कीम। तो जो अमाउंट आप निश्चित करते हैं, जो डेट आप निश्चित करते हैं, उस डेट को आपका ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाता है। तो इसको लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो उसके लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट है। एक आपके पास केवाईसी होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो केवाईसी कराने के लिए आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो इसको दे करके आप अपना केवाईसी करवा सकते हैं और केवाईसी होने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मोड ऑफ इन्वेस्टिंग, दोनों तरह के मोड हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड और फिजिकल मोड। फिजिकल मोड में क्या होता है, हमको एक फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है फिजिकली पेन पेपर यूज करके, और ऑनलाइन मोड में हम अपने लैपटॉप से ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर हमें पैसा विड्रॉ करना हो तो हम लोग
ऑनलाइन ही अपने रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं और वहां से अपना जो है हमारा पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये भी, यहाँ पर भी हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड यूज कर सकते हैं। अब एवोल्यूशन प्रिंसिपल की बात करें तो जैसी आपकी रिस्क एपेटाइट है, जो रिटर्न आप लोग चाहते हैं, उसे देखते हुए आप अपना निवेश इसमें कर सकते हैं। अब एनएवी क्या होती है? एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके हिसाब से हम अपना निवेश करते हैं या फिर अपना निवेश बाहर निकालते हैं। तो ये एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है? ये एनएवी जो है, हम लोग जब मार्केट क्लोज होता है तो हमारे इन्वेस्टमेंट की एक वैल्यू होती है जिसे हम लोग एसेट बोलते हैं। उसमें से हम लोग लाइबिलिटी माइनस करते हैं, उसको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू निकल करके आती है वो उस पर्टिकुलर डेट की एनएवी होती है। और ये एनएवी जो है डेली एमफी वेबसाइट, म्यूचुअल फंड वेबसाइट और लीडिंग न्यूज़पेपर पर पब्लिश होती है। प्रोडक्ट लेबलिंग के लिए सेबी की तरफ से एक रिस्कोमीटर मैंडेटरी है। रिस्कोमीटर एक सेमी सर्कुलर प्रेजेंटेशन होती है जिसको 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, एंड इट्स इंडिकेट द रिस्क ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आपके जो इन्वेस्टमेंट के रिस्क हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पे क्या रिस्क है, वो इंडिकेट करते हैं। तो उसमें ग्रीन शोज द लो रिस्क एंड रेड शोज द वेरी हाई रिस्क। तो निडल से आप देख करके पता लगा सकते हैं जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग कैसी है। सेबी की ओर से एक इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम लॉन्च किया गया है, एंड यू कैन चेक योर इन्वेस्टमेंट नॉलेज थ्रू दिस बाय अपीयरेंस इन दिस एग्जाम। तो इसे एनआईएसएम कंडक्ट करता है और ये फ्री है। तो आप ये एनआईएसएम की वेबसाइट पे जा करके या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस इन्वेस्टर एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी एनआईएसएम की तरफ से मिलता है। तो एक नॉमिनेशन एक हमारे इन्वेस्टमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने सक्सेसर के लिए करते हैं, और लाइफ अनसर्टेन है, कब क्या हो जाएगा नोबडी नोज। तो अपने इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करने के लिए कि वो जो सही हाथों में पहुंचे, तो उसके लिए नॉमिनेशन करना जरूरी है। ये नॉमिनेशन आप जिस समय आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं, और कभी भी जब तक आप इन्वेस्टेड हैं उसके बीच में आप कभी भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, और इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब नॉमिनेशन ना करने से क्या होता है कि जो हमारा निवेश है वो हमारे लीगल हायर तक नहीं पहुंच पाता है। उनको उस इन्वेस्टमेंट को क्लेम करने के लिए एक लीगल प्रोसेस में जाना पड़ता है, जो टाइम टेकिंग होती है, वेरी कम्बरसम है, और उसमें आपका एक्सपेंसिव भी है। तो उस सब से बचने के लिए नॉमिनेशन करना महत्वपूर्ण हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अब नॉमिनेट करने के लिए मैंने जैसे बताया कि आप कभी भी अपने निवेश में अपने नॉमिनी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो निवेश करने के लिए केवाईसी और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो इनको दे करके आप अपना निवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। जब आप निवेश करें तो ये भी चेक कर लें कि जिस एएमसी में आप रजिस्टर्ड निवेश कर रहे हैं वो सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इसको आप लोग सेबी की वेबसाइट पे जा करके भी चेक कर सकते हैं। और हमारे निवेश का एक और महत्वपूर्ण अंग है कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म, क्योंकि जब हम लोग निवेश करते हैं, जैसे आपने शुरू में कहा था, निवेश करते समय रिस्क हो जाता है। तो जैसे आपने अपने मित्र को पैसा दिया, तो फिर आप अपन उससे पैसा निकालने के लिए किसी दूसरे मित्र को पकड़ते हो कि भाई तुम थोड़ा सा दबाव डालो तो हमारा पैसा वापस मिले। तो उसी तरह से सेबी ने एक कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म बना रखा है जहां पर आप अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। हर एएमसी को अपनी एक कंप्लेंट कस्टमर रिलेशन सेल बनाना, इन्वेस्टर रिलेशन सेल बनाना जरूरी है, तो जहां पर आप अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं।
तो जब भी आप अपना निवेश करते हैं उस एएमसी की वेबसाइट पे जाकर के आप लोग टोल फ्री नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनका पोस्टल एड्रेस चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा सेबी का एक स्कोर पोर्टल है जहां पर जाकर के भी आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, या इसके एक मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। तो इसमें आप जो भी कंप्लेन करते हैं उसका 30 दिन में आपको सोल्यूशन मिल जाता है। देयर इज वन डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्या है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। कि जो भी आप निवेश करते हैं वो मार्केट के रिस्क से जुड़े हुए होते हैं। तो ये डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है कि आपको ये अवेयर कराना कि वहां मार्केट में रिस्क है और वो रिस्क आपने समझ लिया है और उसे समझ करके आप अपना निवेश कर रहे हैं। दैट इज अ पर्पस ऑफ दिस डिस्क्लेमर। इसमें आपको डराने का पर्पस नहीं होता है, लेकिन आपको एक अवेयरनेस देने का इसका मेन पर्पस होता है। So thank you very much for attending this session. If you have any query, you can put your queries. अपनी क्वेरी अगर कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जब तो आप क्वेरी पूछते हैं तो अपना एक फीडबैक लिंक ये दिया हुआ है, यू कैन सबमिट योर फीडबैक। ये क्यूआर कोड स्कैन करके या ये लिंक यूज करके अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, और ये फीडबैक सबमिट करते ही आपको आपका सर्टिफिकेट आपकी रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी पर रिसीव हो जाएगा। Sanjay sir, kindly share the training code also on the chat. यस यस। Meanwhile, I request all the participant kindly ask the queries. Sir, कुछ queries आ भी गई हैं आपके chat पे। मैं अभी देख रहा हूँ सर, मैं जरा ट्रेनिंग कोड ले लेता हूँ तो। आज का ट्रेनिंग कोड है 14793। जो ट्रेनिंग कोड आप यूज करेंगे तो दैट इज 14793। तो ट्रेनिंग कोड डाल करके आप अपना तो ले सकते हैं। तो सलमान वालिया पूछना चाह रहे हैं, विच इज बेटर फॉर अ बिगिनर, म्यूचुअल फंड और अ डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट? देखिए, बिगिनर है तो आपको एक मेंटरशिप में जाना चाहिए, और मेंटरशिप का क्या तरीका है? आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो वहाँ आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है। तो अगर आप मेरी सलाह चाह रहे हैं तो म्यूचुअल फंड इज आंसर। अगर आपको लगता है कि नहीं, डायरेक्ट स्टॉक्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको है, तो आप जैसा आपकी सुविधा हो वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार आपको म्यूचुअल फंड के माध्यम से समझना चाहिए, और उसके बाद अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जाते हैं तो। नितेश पूछा पीपीएफ क्या है, कुछ डिटेल बता। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इसको रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह से यूज किया था, और रिटायरमेंट के साथ साथ टैक्स बेनिफिट के लिए यूज होती है। उसको ट्रिपल ई कैटेगरी की स्कीम कहा जाता है, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। मीन्स इसमें जो पैसा आप निवेश करते हैं वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो एग्जेम्प्टेड होता है, और जो मैच्योरिटी होती है वो भी आपकी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है। तो इसमें जनरली एटीसी की क्लोज को फुलफिल करने के लिए आप 1.5 लाख तक इसमें अपना निवेश कर सकते हैं। और इसमें लॉक इन होता है 5-5 साल के, 3 ट्रेंच होते हैं।
वैसे फर्स्ट अकाउंट जो आपका खुलता है 15 साल के लिए खुलता है, और 3 साल के बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका आप 25% इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, और 5-5 साल के 3 ट्रेंच में आप इसको फर्दर बढ़ा भी सकते हैं। ओके नितेश जी, स्वीकार यस, स्वीकार टेक सबमिशन। म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में, म्यूचुअल फंड जो है एक फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है, पीपीएफ में पूरा लॉक इन रहता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है, तो उसका टाइमिंग पीरियड होता है वह पूरा होने पर मिलता है। देखो उसमें पीपीएफ में हर साल आपके अकाउंट के अंदर पैसा, इंटरेस्ट का जो पैसा है वो क्रेडिट हो जाता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप जैसा प्लान चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है, ग्रोथ प्लान में उसी में इन्वेस्ट रहता है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? और सेशन कैसा लगा आप में से कोई बताना चाहे, और यू कैन सबमिट थ्रू चैट बॉक्स। बाकी आपने अपना फीडबैक दिया ही है, यू कैन सबमिट योर फीडबैक थ्रू दिस लिंक। और किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। Anybody having any query? Dr. Swati, are you there? Yes, ma'am. Yeah. So you can So- put vote of thanks to sir. Yes. Thank you. Yes. Thank you very much, sir, for this wonderful session. And on behalf of Punjab School of Economics, and on behalf of the head of the department, Professor Mandeep Kaur, and my own behalf, and on behalf of all the participants, I really want to thank you that you have spared your valuable time here and have actually explained us the nuancity of financial market, which are very important. We people always try to save our money, but it becomes very difficult for us that how we should be actually investing and in what form we should be investing. And you have actually cleared many doubts which were there. So in that context, we are really, really very thankful to you. And we just hope that sometime soon we again, get a chance to listen to you. With this, note, I really want to thank. And apart from this, I want to thank the university authorities for giving us this opportunity to conduct this sort of workshop for us. And from all of us, thanks once again. Thank you, Arisha ma'am. Thank you. Thank you, Mandeep ma'am, and thank all the participants to join us. And thank you very much.